I guess we should start with the we can now. क्या हुआ? मैंने कहा कि सेशन स्टार्ट कर लेते हैं. Okay, wait. You guys couldn't see my screen so far? Videos play हो रही थी अभी? Yeah, screen to share है. Yeah, we can see your screen, but you can start. No issues. Okay, can you see my video? I know. Maybe it'll give you a screen. Yeah, we can see it actually. One Can you second. just reshare it again. Can you see it now? Yes. Yes, video दिख रही है? आवाज आ रही है? No, आपकी जो slides वाली screen है सिर्फ वो show हो रही है. That's it. Okay, wait. Let me share my entire screen then. Because okay, is it better? Can you see it now? Yes, now we can see your slides. ठीक है, आपको वीडियो दिख रही है? बता देना आवाज आ रही है कि नहीं. Yeah, just make it a full screen. Can you hear it? Yeah, just make it a full screen and we're good now. Yeah, Okay, perfect. चलो, let's start. Let's start. निम्रा वीडियो पे आवाज नहीं. आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. My apologies. ये माइक्रोफोन में ना इसको स्ट्रीम कर दो. स्ट्रीम स्टीरियो मिक्स जो है वो उसकी सेटिंग उस तरह कर दो माइक्रोफोन में जाके ना. अब आ रही है? Yes, we can hear you now. Okay. आवाज सही से समझ नहीं आ रही मैडम. So basically हम करते क्या है, just share them the link as well. उसके अलावा जिसकी भी वीडियो की आवाज सही आती है, so we will share it also. ठीक है. Basically इन वीडियोस का मकसद ये है कि it is about, okay, I think, yeah. So these videos are about there is like thing when you apply for DSC lead, and this is the kind of guide that how you can apply for it. Yes. So we are sharing some sample videos. इसकी हम आपके साथ लिंक भी शेयर कर देंगे in case you cannot view it correctly. या आपको आवाज वगैरह का मसला हो रहा है तो आप एक दफा वहां से भी देख लें. ठीक है.
Nimra, I guess जी when you open your mic जब आवाज सही हो जाती है my और अभी mic is मेरी open आवाज मुझे for वापस सुनाई दे रही है yeah because my mic was open. इस तरह कर लेते हैं, we can skip the videos part and we can move ahead. I guess videos में distortion बहुत ज़्यादा आ रही है. ठीक है okay yeah and we'll share the exactly. link फिर चलो. yes we will share the slides link as well तो उसके बाद आप जाके बिल्कुल वीडियोस वगैरह देख सकते हैं yes Bye. Guys, I have shared the links, video links in the chat. You can see them whenever you want. Okay, can anybody hear me? Yes we can. Yeah. That's great. So, how did we become DSC leads? Or who are we? We are the DSC leads. I am Ikra and I am a DSC lead. I am Nimra and I am a DSC lead. I'm Shiroz and I'm a DSC lead. I'm Fawad and I'm the DSC lead. I'm Fatma Yusuf so and I'm a DSC lead. yeah so let tell you guys that I'm Ryan Siddiqui and I'm a DSC lead also and I'm lead at Usman Institute of Technology Karachi Pakistan. Wallah, मेरी बारी आ गई. चलो, I'm Sadakat Umar and I'm DSC lead. Okay, so how did we become DSC leads? Well, to be the first, we filled a form at goo.gle/gdsc leads, and we applied for an opportunity that took us one step closer to Google. So I'm just explaining now, then I will take names and then they will just explain it. So basically about me, there was this thing, I was attending this session, this tech session, so I get to know about the DSC program. The ex-DSC leads was there. So मैंने program attend किया, then I get to know about that and then apply for the DSC lead position, which is at developersclubs.dev, or I guess you could mention the site. So yeah, that's pretty much of it, and we'll just discuss about the further things as well. So yeah, stay tuned. We were passionate and we wished to make a difference in the community through technologies. And I think this is something that was common between all of us, and this is why we became the DSC leads. Okay, so in my case, it was just because I was passionate about technology. I was passionate about learning different things, and I heard this thing from one of my colleagues that we have a DSC program in Pakistan, and that is pretty much closer to Google. So yeah, I applied for the Google program and I got selected. Overall, we 43 leads were selected from Pakistan. So that thing about technologies and all that stuff, that doesn't make you become a DSC lead. Your leadership skills count, your other skills count as well. So ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एक लेवल पे लेकर जाती हैं. So my name is Shiroz Wali Khan. I'm DSC lead from FAST Islamabad. तो मेरा तो ये था कि there was my एक friend था मेरा, उसने मुझे अप्रोच किया DSC के प्रोग्राम के लिए. He was the DSC lead at that time. So he asked me that he wants to establish the club, proper club. So he wants my help because I was involved in different university societies and other events. So he approached me.
तो फिर हम दोनों ने एक तरह से इस्टेब्लिश किया पूरा डीएससी जो स्ट्रक्चर है पूरा बनाया। फिर इस तरह हुआ कि कोर टीम हमने बनाई, तो आई वाज ही मेड मी द टीम मैनेजर फॉर हिज कोर टीम। तो after that after that I applied for the DSC position once he got graduated, और उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, वीडियो बनाई, इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद देयर आई एम। आप देख लें कि ये that's pretty much my journey. Assalamu alaikum, this is Kumail, and this is the DSC lead from NUST Islamabad. So before coming to the DSC program, I was already pretty much into this ecosystem. Before, I was working with my GDG friends, ACM NUST, one of the most exquisite societies you will ever find in any university. So I was pretty much familiar with this program. But my former DSC lead, who was the part of the first DSC batch, the first cohort of DSC leads, which was 2019. So he approached me for establishing a club at NUST as well, considering there were a lot of competition already. Like there are a lot of societies in NUST. So keeping that in mind, we started this initiative. And after 1 year, he somehow got to know that I'm the right fit to continue this legacy. He vouched me for this program, and yeah, today here I am. So this is my journey, and this is how I became a DSC lead. Okay, so me being the last, I am Fatma Yusuf. I am a Developer Student Club's lead from Mehran University, Jamshoro. And it was like this, as Ikram mentioned, I filled the simple form and then I got interviewed. And then now you see me and us all together running the DSC clubs from different chapters of Pakistan. So yeah, that's pretty much it, and that's what you are supposed to do to become a DSC lead. So if you have got skills in you, or you have got yourself something in you, just come and don't be afraid of doing the simple steps to become the next person to run your clubs and your respective clubs. Yeah. Hola, Sadakat over here again. ओके सो मैं अपना बताऊं तो अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करने का था, कुछ सस्पेंस होना चाहिए, कुछ तो न्यू होना चाहिए. So apart from joke, the real motivation was if you want to please the God, please the creature of God. ठीक है, जब मैं आया था तब यूनिवर्सिटी में कोई भी कम्युनिटी नहीं थी, डेवलपर्स कम्युनिटी तो दूर की बात है. सो आई रियली ट्राइड हार्ड और किसी तरह बस कम्युनिटी बन जाए, एंड यस अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, so first of all, I'm gonna answer a question. यहाँ पे इसी introduction से एक सवाल था कि when did this club started and when it did start in Pakistan. So in Pakistan it came in 2019 and we became the DSC lead in 2020. चूँकि इस तरह की कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं. अगर आप देखें ना, अगर आपको AWS की कम्युनिटी मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटीज़ मिलती हैं पाकिस्तान में, तो इस तरह गूगल ने जो है बेसिकली ये जो कम्युनिटीज़ थी ये पहले इंडिया में थी. And then it covered the whole Pakistan. We have 600 plus clubs around the world for DSCs. We have 43 leads from Pakistan. Okay, so I'm gonna share my experience when जब मैं DSC lead बना, and first of all मेरे लिए challenge था that was to convince my university and register DSC club officially in my campus. And that was the most difficult part, I can say. It was my first experience कि मैं जाता और मैं यहाँ पे अपने coordinators, directors and VC वगैरह को convince करता कि यार इस तरह का club है, मैं officially Google की तरफ से select हुआ हूँ, and we will be having a fun year, we will be exploring different technologies and all that. So वो जब हुआ तो around it took me 2 to 3 weeks के मैं जो है अपने DSC club को जो है वहाँ पे establish कर पाया. I got the permission. After that मैंने क्या किया कि मैंने DSC का एक info session करवाया कि यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट लोगों को पता लग जाए कि DSC प्रोग्राम है क्या है, ये करता क्या है, and around the world जो है DSC में क्या क्या हो रहा है. मतलब देखो, अगर आप एक लिहाज से देखें पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे है. तो फॉर दैट पर्पस दीज क्लब्स आर हियर कि आप लोग जो है इन टेक्नोलॉजीज को सीखें और उनको एक्सप्लोर करें, और कल को जब आप मार्केट में जाए ना तो आपके पास वो स्किल्स होंगी, वो कैपेबिलिटी होगी कि आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकें.
अब जो DSC है ना, बेसिकली ये डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स, इट्स गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स, एंड इसका मतलब ये कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ड कम्युनिटीज होती हैं। आपके पास 3 कम्युनिटीज हैं, एक DSC है, एक GDG है और एक GDE है। DSC जो है वो आपके पास लोकल जो यूनिवर्सिटीज होती हैं आपकी, वो चैप्टर्स होती हैं। GDGs आपके सिटी बेस्ड कम्युनिटीज होती हैं, एंड जो GDEs होती हैं वो आपके कंट्री बेस्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो व्हेन आई हैड दिस फ्लटर बूट कैंप, मैंने ये किया कि मेरे लिए बिल्कुल एक फर्स्ट स्टार्ट था मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स करवा चुका था, लेकिन उसमें मैं एज अ मेंबर काम करता था, एज अ लीड मैंने कभी काम नहीं किया था। तो व्हेन आई डिड अ फर्स्ट सेशन ऑफ इन्फो, उसके बाद मैंने बूट कैंप का सोचा कि मैं फ्लटर बूट कैंप करवा लूँ, एंड आई अरेंज्ड इट। इवन दो कोविड सिचुएशन भी थी, हमने जो है बेसिकली टीचर्स को कन्विंस भी किया कि हम SOPs वगैरह फॉलो करेंगे एंड ऑल दैट। सो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। एक मुझे एक किक स्टार्ट यहाँ से मिला कि मैं खुद भी फ्लटर जो है वो सीखना चाहता था, बल्कि मैं काफ़ी टाइम से सीख रहा था। एंड इस बूट कैंप से फ़ायदा ये हुआ कि मैंने लोगों में एक नए जज्बात पैदा कर दिए कि यार अच्छा, अब हमारे कैंपस में कुछ है जो कि हमें आगे लेकर जा सकता है, हमें एक रास्ता मिल गया जो कि हम फॉलो करके ना देखें। अगर एक बच्चा जो है ना वो DSC क्लब में रहता है ना, तो आई वुड रादर से कि वो बंदा जो है वो कभी गिला नहीं करेगा कि यार मार्केट में जॉब्स नहीं है या इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज वो इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख जाता है, इतना ज़्यादा कुछ सीख जाता है कि उसको बाद में पता नहीं चलता कि यार मैं कहाँ से स्टार्ट हूँ और मैं अभी इस स्टेज पे कहाँ पे हूँ। तो DSC जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इस स्टेज तक लेकर जाता है। तो मेरे लिए जो फ्लटर का बूट कैंप था वो एक किक स्टार्ट था और एक मोटिवेशन था, जिस मोटिवेशन को लेकर मैं आज इस स्टेज पर हूँ। तो एक किक स्टार्ट, एंड टिल नाउ आई हैड सो मेनी इवेंट्स, सो मेनी। एंड अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ ना, तो हर बंदा आप एटलीस्ट मुझे फख्र से बोलना पड़ता है कि बीइंग अ सीनियर मोस्ट स्टूडेंट ऑफ माय कैंपस, लोगों को अब टेक्नोलॉजीज की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है थ्रू दिस DSC प्रोग्राम। अच्छा, दिस इज अ स्लाइड डेमो वीडियो, बट आई वुड रादर से कि इसका लिंक मैं आपके साथ चैट में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, तो आप यहाँ से, ठीक है। अगर आप YouTube पे चैनल देख भी सकते हैं DSC अनचेंजेस के नाम से, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। Okay, so this was also one of the experiences that Raheel and I hosted through UIT and Habib University collaboration for the Kotlin workshop with Wajahat Kareem and Arbaz Pirwani. And there were 45 people who showed up, and we were following all SOPs. Of course, COVID ki wajah se there are a lot of challenges that came in our way, but I feel like when the community is passionate about it and when we are passionate about it, it ends up really well. So this was one of the workshops that I think had a great impact in the entire community, as well as the community outside in different cities. So as a DSC lead, your experience and the network that it is building is very important, and you get the recognition that from not just from your university but also from people across your country, and if you do really well, from across the city, across countries as well. So it is very important that when you're part of it, you give all of your energy and your creativity skills to it, and given that effort, you are chosen from one of the many applications that people will apply. So make the best use of this experience, and we did so in this workshop. And we plan to host another workshop in NIC also after Eid. But the thing is, why are we doing this again and again? We are doing this because we are motivated to create a change, and we are motivated and we are here, we want you to learn. And when you become the DSC lead, think about this. You should be able to know, and you should be able to be passionate to spread the knowledge that you have, or connect with people that can spread the right knowledge. So yes, actually, let me just add one or two things about the Kotlin workshop as well. Can you just change the slide again? Sure. So yeah, so there was this collaboration between UIT, I am DSC lead of UIT, and Nimra is DSC lead of Habib University, Karachi. So the most amazing thing about this program is, or any program that you have to do, you have to build a community, and you have to do collaborations with your mates and with your community members. Okay,
So that is what we did. सब कुछ online हो रहा था, and we were like पूरा tenure अब online जाएगा. So there was this thing जब first wave कम हुई थी and everything was opening up. So then we just selected 45 students from the applications and did this workshop. Or like it was like 3-4 hour long, and it was like super amazing workshop, a first physical experience for the DSC, and it was like so productive. The speaker were Wajad Kareem and Arbaz Pirwani. Wajad Kareem is Google Developer Expert. जैसे कि अभी फवाद बात कर रहा था, there are 3 communities, so he is the Google Developer Expert in Android. So yeah, that was a really good experience. And yeah, if you get a chance, you should have to get into the opportunity and do something. अगर आप कुछ नहीं करें तो just don't apply और किसी और को करने दें. So yeah, that is what I wanted to talk about. Thank you so much. Okay, hear me again. So मैं अपना एक्सपीरियंस ये तो शेयर करना चाह रहा था कि मैं डीएससी लीड कैसे बना एंड ऑल थिंग, मगर अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, आप ये मतलब मोटिव ना रखें अपने जहन में, अगर आपको डीएससी लीड बनना है तो यार मैं बनूं या मेरा नाम हो या कोई एक स्टेटस शो हो कि मैं डीएससी लीड हूँ, ठीक है। आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको कम्युनिटी को पे बैक करना है, सही है। तो अभी यहाँ पे मैं ये बताऊंगा, जब मैंने वर्कशॉप कराया था, ठीक है, आई रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि मैनेज कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दिस ऑल थिंग्स, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। मगर वहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि आखिरकार क्या लोग सीख रहे हैं इस बूट कैंप में, अगर स्टूडेंट आए हैं तो वो क्या चीज़ें सीख रहे हैं। मैं क्योंकि मैं खुद जो है वो एंड्रॉयड नेटिव के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है, जब मैंने लर्न किया था एंड्रॉयड तो आई वाज लाइक कि भाई यार मैं कर तो रहा हूँ ये काम, मगर मतलब आउटपुट ही नहीं आता था। अब यहाँ पे DSC वाज प्रोवाइडिंग कोड लैब्स, ठीक है, जो गूगल की तरफ से फ्री कोड लैब्स होते थे। हमने वहाँ पे ऑन द स्पॉट सारे कोड लैब्स वगैरह कराए एंड यस स्टूडेंट्स वर अर्निंग डिजिटल वेजेस। तो ये उनको वहीं पे एक मोटिवेशन मिल रही थी कि यार मुझे बेच मिल गया, सी एंड दे वर शेयरिंग आउट फेसबुक एंड लिंक्डइन के देखो भाई ये मुझे बेच मिला एंड ऑल। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त होता है DSC का। एंड व्हेन यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, आपको एक फीलिंग आती है कि यस यार जो हमने कुछ सीखा है एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग। मतलब इस तरह नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी के दौड़ में भाग रहे हो, आपको फील होता है कि यार वी आर डूइंग समथिंग, वी आर मोटिवेटेड टू मेक द चेंजेस। बट व्हेन यू रियली सी के कुछ हो रहा है चेंज आपकी वजह से, कैंपस में कुछ ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है, स्टूडेंट्स को एक पाथवे मिल रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। तो या दैट वाज माय फीलिंग कि भाई मज़ा आ गया। Okay, so what is the core job of a DSC lead? So first of all, तो आपका काम ये होता है कि not every university has established DSC lead. If you don't have established DSC at your university, you need to make sure that when you're applying this time and you get selected, you need to register your chapter at your university. You know, give it that recognition, give it that credit, okay? Because you are chosen one out of many applications. So when you are chosen, make sure that your chapter at your university is well established, people know about it. So first step आपका यही होगा कि आप उसको register करो. Second step ये होगा कि आप एक faculty member choose करो, speak to them, approach different faculty members, उनका point of view लो on how to run your DSC in your university. ये सोचो कि आपकी जो audience है, आपकी जो community है, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, राइट? तो आपकी कम्युनिटी के हिसाब से बेस्ट अप्रोच क्या होगी आपकी, इनमें से कौन सा फैकल्टी मेंबर है हु इज मोस्ट पैशनेट अबाउट इट, हु इज विलिंग टू स्टेप अहेड फॉर यू, उसको सिलेक्ट करो फॉर योर फैकल्टी एडवाइजर. वंस यू थ्रू द स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फैकल्टी एडवाइजर, देन कम्स योर कोर टीम. जब फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो आपके DSC लीड ने अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पहले है, दैट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, आपको वो करने की जरूरत नहीं है. अभी आप DSC लीड बनोगे, ऑल यू हैव टू डू इज चूज अ कोर टीम. कोर टीम के लिए मेक श्योर यू आर चूजिंग मेंबर्स हु आर वर्किंग, ठीक है? डोंट मेक अ ह्यूज कोर टीम and then end up with people not really showing up or end up with people who are making excuses. Choose a core team that you know is very passionate, they will work for you. This is a
बेसिक DSC is basically an initiative जो आप volunteer करके ले रहे हो, okay? And your core team should be willingly and happily be able to volunteer for this as well. This is something that is going to make a difference in the community. So make sure when you're doing it, you are doing it with the passion and the satisfaction that you are doing something for the community. Don't do it for you. Don't do it for your personal benefits. Of course, there are personal benefits, but then make sure that when you're doing it, do it for the community. कोर टीम आप सिलेक्ट करते हो, कोर टीम आपके ऊपर डिपेंड होती है. आपको जितने मेंबर्स रखने हैं आप रख लो, आपको जितने लीड्स रखने हैं, डेवलपर लीड रखना है, ग्राफिक लीड रखना है, जिस भी तरीके की कोर टीम बनानी है, व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू, चूज दैट. You don't have to necessarily follow a structure. All of us have different core teams here. Some of us have 1 member, some of us no members, some of us has 30 members. That is completely fine. As long as each DSC is performing events and each DSC has a set of rules that they're following and they're working, that is completely fine. We also organize events, and I think Kumail can elaborate more on that. Sorry, I missed just the last segment. Can you just repeat that again, Imra? Yes. Can you talk about the DSC platform? Yeah, sure. Perfectly fine. Yeah. So to talk about the platform, there's this platform that is powered by Bevy for the DSC Lead program. For now, I don't know what they're gonna do for this tenure, for the upcoming tenure, basically. But for our tenure, they were using Bevy, and it's a very good platform overall. It had one or two few problems, but this is something that you observe almost everywhere. And the program isn't a bit really matured so far, so it's something that you guys get in right now. It would be really great. You will be known as the pioneers of this program. First thing. ठीक है. एक चीज और मैं चैट में देख रहा था, मैं कुछ और बात करने से पहले कंटिन्यू कर लूं. You guys have मतलब keep those valuable questions coming in, but we will entertain आखिर में, क्योंकि इस तरह से फिर वर्कशॉप जो भी हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसके बाद वो थोड़ा सा क्लटर हो जाएगा. ठीक है, तो कीप दोस वैल्यूएबल क्वेश्चन. जैसे ही पूछेंगे, Q&A सेशन है, तो यू कैन इवन अनम्यूट योर माइक्स एंड हैव अ डिस्कशन. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ DSC प्लेटफॉर्म. तो अच्छा देखो, वहां पे क्या होता है कि इट्स अ प्लेटफॉर्म. वहां पे सारे आप मतलब जितने भी ग्लोबली जितने भी यूनिवर्सिटी के चैप्टर्स है ना, ऑफिशियली वहां पे हैं मौजूद. फॉर एग्जांपल, समवन आस्क यू कि यार ओके DSC, व्हाट इज DSC, यू कैन जस्ट लिटरली सेंड योर यूनिवर्सिटी का चैप्टर. उनका वहां पे पूरा एक पेज बना होता है उस वेबसाइट पे, आप उसको भेज दो तो ही विल मतलब उस पे अब आपने अपना कंटेंट लिखा हुआ है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या करी, उसके गोल्स क्या है, फिर DSC क्या गोल है. तो कोई भी बंदा होगा, कोई स्पॉन्सर्ड भी हो, तो ही विल बी लाइक ओके दिस समथिंग प्रोफेशनल. बंदा जो है प्रॉपर है, इसके पास एक लेजिट गूगल बैकग्राउंड है, और उस बेस पे ये इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है. इसी तरह वहां पे जितने भी 600 चैप्टर्स हैं सो फार, तो वो उनके लीड्स, उनकी कोर टीम, हर चीज, हर तरह की डिटेल वहां मौजूद होती है. ये तो हो गया वो पार्ट के जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है. दूसरा पार्ट इसमें ये है कि जो हमारे लिए होता है, जो एज एन लाइक आई एम अ DSC लीड, तो वहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी चीजें जो आप भी शायद नहीं देख रहे हो, हम देख रहे हैं. उसमें होता है कि बेसिकली हमें एक डैशबोर्ड दिया जाता है. उस डैशबोर्ड पे यू क्रिएट इवेंट्स. उस डैशबोर्ड पे यू क्रिएट अदर थिंग्स, कि आप कोई कोलैबोरेशन कर रहे हो, आप फैसिलिटेटर्स ऐड कर सकते हो, आप स्पीकर्स ऐड कर सकते हो डैशबोर्ड पे. फिर वो डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली आपको DSC के प्लेटफॉर्म से ईमेल सेंड कर देता है विद नो रिप्लाई अवेलेबल टू दैट पार्ट. ठीक है, और मतलब ये सारा प्रोफेशनल एक उस प्लेटफॉर्म पे चीजें अवेलेबल है जो किसी और प्रोग्राम में मैंने अभी तक नहीं देखा, विच इज वेरी गुड. फिर उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी रजिस्टर आप मतलब पार्टिसिपेंट है, ऑनलाइन टिकट्स आजकल सिस्टम है, जिस तरह से आप गूगल फॉर्म पर रजिस्टर करते हो, इसी तरह वहाँ पे आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो वाया RSVP. और एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि उस प्लेटफॉर्म पे आप न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हो. उसका एक बड़ा अच्छा फायदा ये होता है कि कोई भी नई वर्कशॉप आ रही है तो उस पर्सन को पता चल जाता है जो आपके DSC प्लेटफॉर्म का काइंड ऑफ फैन है या फॉलो करता है. ठीक है, उसको एक न्यूज रहेगी, उसको एक ईमेल आती रहेगी कॉन्टिन्यूसली कि अच्छा ये इवेंट अपने यहाँ आ रहा है, एक नई चीज, एक नया इनिशिएटिव आ रहा है, कोई गूगल की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ऑफ कोर्स वी आर द फर्स्ट वन कि जो उसको फॉरन पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो उस नीश में है, उस डोमेन में हम लूप में रहते हैं, तो हमें पता होता है कि यार ये चीज आ रही है, ये चीज नहीं आ रही है, इस तरह से हो रही है, इस तरह से नहीं हो रही. हम फॉरन से उसके बारे में कोई इन्फो सेक्शन या कुछ कराते हैं, ताकि पाकिस्तान में स्पेशली उन लोगों को, हर कॉर्नर पे लोगों को पता चलता रहे कि यार अच्छा ये वर्कशॉप हुई है, इस तरह से हुई है. ठीक है, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है. क्या लोग कहते हैं ना कि जी हमारा टेक्नोलॉजी 5 साल बाद आती है. चलो बेशक 5 साल बाद ऑफिशियली आए, लेकिन अनऑफिशियली बच्चों को इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, वो लोगों को पता चलती रहे. तो न्यूज़लेटर बड़ी अच्छी चीज है इस प्लेटफॉर्म पे. उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हो गया.
और उसके अलावा आप यू कैन लिटरली ऐड योर स्पॉन्सर्स ओवर देयर एज वेल। मतलब आप अगर फर्स्ट करो स्पॉन्सर पिच कर रहे हो कि यार मेरा डीएससी प्लेटफॉर्म है एंड कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो या कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपके डीएससी के इनिशिएटिव को, चैप्टर और क्लब को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो आप उस स्पॉन्सर को भी उस प्लेटफॉर्म पे ऐड कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म ओवरऑल। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक्स एज वेल कि उस प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी का चैप्टर किस तरह का होता है और वहाँ पे किस तरह से कोर टीम और हर पर वर्कशॉप किस तरह से शो होती हैं चीजें। आई होप मोस्ट ऑफ यू गाइस आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट ऑलरेडी। ज्यादातर प्लेटफॉर्म लिंक्स हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो दिस वाज इट अबाउट द प्लेटफॉर्म। थैंक यू। अच्छा, जहाँ पे कोवैल ने अभी डिस्कशन स्टॉप किया ना, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट। एंड जहाँ तक निम्रा ने बात की, तो देखें, एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बीइंग अ लीड आप में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। देखें, जो लीडर होता है ना, आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए। अब लाइक लेट्स सपोज आज मैं डीएससी का लीड हूँ, हमने 1 साल जो है स्पेंड कर दिया है, तो दैट इज़ बिकॉज कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी कि यार मैंने ना लोगों को चीज़ें सिखानी है। ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये आपको बहुत आगे लेकर जाती है, बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है। इवन तो आई हैव सो मच स्किल्स एंड स्टिल मैं लोगों को सिखाता हूँ कि यार आओ चीज़ें सीखो, बिकॉज उससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और उस बंदे को भी फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार हमने कोई चीज़ सीख ली है, अगर मैं किसी और को बताऊंगा तो उससे क्या होगा, वो जो है बेसिकली अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा मुझे एंड वो दूसरा बंदा मुझे आगे लेकर जाएगा। नो, कभी भी ऐसा नहीं होता, नेवर। आपको ये चीज़ें हमेशा आगे लेकर जाती हैं, ठीक है, कभी भी आपको पीछे नहीं लेकर जाती। दूसरा, जहाँ तक डीएससी के बाद, डीएससी क्या करते हैं, डीएससी बेसिकली अब आप देखें यहाँ पे आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, गूगल आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है। अब आप आए यहाँ पे दुनिया में किसी कोने में भी, अभी तो खैर पेंडेमिक सिचुएशन है, तो आप दुनिया में किसी भी स्पीकर को कांटेक्ट करें और आप सेशंस करवा सकते हैं बेस्ट से बेस्ट स्पीकर्स। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में तो आपके पास बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे वो सीएस स्टूडेंट्स को या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एंटरटेन करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि वो आपको थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं, हैंड्स ऑन पे बहुत कम फोकस करवाते हैं। एंड डीएससी का काम ही ये है कि वो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो आप फिल करें। तो वो आप कैसे फिल करेंगे, वो आप इन सेशंस और इन बूट कैंप्स और इवेंट्स के थ्रू ही करेंगे। और वो इवेंट्स कौन अरेंज करेंगे, आप लोग अरेंज करेंगे। आपके पास देखें, जब आप लीड बन जाएंगे तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया, अल्टीमेटली आप उसको यूटिलाइज करते हैं। टाइम के साथ क्या होता है कि आपकी अपनी ग्रूमिंग भी होती है, आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो साथ साथ इम्प्रूव होती है, आप अपनी टेक्निकल स्किल्स पर भी काम करते हैं और आप दूसरों को भी सिखाते हैं। और फॉर मी द बेस्ट लर्निंग इज पीयर टू पीयर लर्निंग। आप अपनी पीयर्स की जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं ना, तो आप करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि पीयर टू पीयर लर्निंग जो है आपको ज़्यादा ईजी लगता है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी स्पीकर से सेशन करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी स्पीकर से सेशन ना करवाएं, बट आप जब पीयर्स में बैठे होते हैं ना, तो आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। एंड ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस की है। whenever I do networking sessions, whenever I do web sessions, या मैंने खुद पर्सनली अगर फ्लटर के सेशंस करवाए हैं, तो उसमें मुझे यही फील हुआ कि लोग वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाता है, तो आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एंड प्लस इससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ कि आप हैंड्स ऑन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि डीएससी का मकसद यही है कि आप जितना मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं या जितनी मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज आप करवा सकते हैं, तो वो आप करवाएं। एक और चीज that I'll add to what these guys said, the main purpose of DSC is basically you're solving problems that are locally faced either in your university, in your city or in your country. So throughout these workshops, जो आप सीख रहे हो, whatever you're learning, at every step you should know and you should have this motivation कि is there something I can do for my community, be it local, global, international, anything. Is there something I can do for my community with the knowledge set that I have? If at that point you feel like you don't have enough knowledge, go for it. Attend more sessions. आप अपने लीड से बात करो। आप इनफैक्ट इफ यू आर द लीड योरसेल्फ, यू शुड नो कि ये स्किल सेट अभी तक मेरी कम्युनिटी में बिल्ड नहीं हुआ है, आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, आई शुड स्टार्ट गिविंग मोर वर्कशॉप्स ऑन दिस, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको खुद से नहीं देनी, कॉन्टैक्ट समवन हु इज डूइंग इट, contact a GD. You're always, when you're a DSC lead, you're only one click away from
contacting a GDE or a GDG from anywhere from the world, and they will cater you. That is the main essence of the community that Google has provided. So when you become a DSC lead, you have to make sure that you have some impact on the local community and you're solving some problems that are locally faced through technology. So, and I don't think there is a better opportunity than this to express this. So make sure when you become a DSC lead, it is very impactful. यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे फवाद ने बात की कि डीएससी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ब्रिज करे गैप थ्योरी और प्रैक्टिस में। तो जो मेन है वो तो ये है, लेकिन साथ में सिंस इट इज़ अ गूगल सोसाइटी, तो हमें जो क्या होता है, हम ज़्यादातर इवेंट्स करा रहे होते हैं ज़्यादातर वो रिलेटेड टू गूगल टेक्नोलॉजीज होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कोई इवेंट कराना है, वर्कशॉप करानी है, तो आप सिर्फ गूगल स्पेसिफिक हो। आप गूगल तो लाजमी कराएं, गूगल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, लेकिन कोई भी किसी तरह की कम्युनिटी की हेल्प हो सके आप वो कराएं। जैसे हमने बड़े इवेंट्स कराए हैं फ्रीलांसिंग पे। अब फ्रीलांसिंग एज अ होल जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन एज ए जनरल अगर हम करें तो एक फ्रीलांसिंग का हमने बाकायदा अपनी टीम बनाई हुई एक, जिसमें उसका काम ये होता है कि दो तीन जो हम तकरीबन हमने 3-4 इवेंट्स करा चुके हैं फ्रीलांसिंग पे, और काफी ज्यादा एंगेजमेंट हुई है, क्योंकि इन दी एंड हमने एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और फ्रीलांसिंग सिखाना, और उसमें डिफरेंट अगर आपको जॉब भी ना मिले, आपको कुछ भी ना हो, अगर आप फ्रीलांसिंग सीख लें तो आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो हमने एक ये अपने क्लब में एक ये रखा हुआ था। और साथ में डीएससी का जो इस साल हम देखा गया वो ये है कि काफी ज्यादा कोलैबोरेशन हुई है हमारी। काफी डीएससीज ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन की है। पिछले साल इतना नहीं आया था, शायद क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सारा कुछ वर्चुअल इवेंट था, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा कोलैबोरेशन हुई। जैसे हमने की डीएससी बूट कैंप 101, उसमें इस तरह हुआ कि हमारी जो टॉप तो नहीं कह सकते, जितने 12 डीएससी जो हैं पाकिस्तान में, उनके साथ कोलैबोरेशन हुई और हमने तकरीबन 12 इवेंट्स कराए, 6 टेक्निकल एंड 6 नॉन टेक्निकल इवेंट्स। और काफी हमारा मतलब काफी एक तो रेवेन्यू भी जनरेट हुआ। अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो हमने फिर काफी जो विनर्स थे उनको स्वैग्स प्रोवाइड किए, और मतलब अपनी कोर टीम के लिए, क्योंकि डीएससी जो है वो अपना खुद उसका बजट नहीं होता, तो अगर आपने इस तरह इवेंट कराने तो आप अपना खुद एक अपने रेवेन्यू मॉडल आप बना सकते हैं इस तरह की कोलैबोरेशन करके। तो ये मैं एक चीज जो ऐड करनी थी, तो that's all. Okay, perfect. Let's move on. अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि spreading the awareness about the Google technologies. ठीक है, see there are so many technologies coming up, like जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ये ब्लॉकचेन हो गया, एंड डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सेम वे गूगल की भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो मार्केट में चल रही हैं। ठीक है, जैसे अभी फ्लटर आ गया, तो अब काफ़ी ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं जो न्यूबीज आते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता, वो स्टिल इसी के ऊपर स्टक होते हैं कि एंड्रॉयड नेटिव या फिर लाइक किसी और हाइब्रिड एप्लीकेशन टाइप पे। तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द गूगल टेक्नोलॉजीज के भाई उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें आप। ठीक है, जो डीएससी लीड होता है उसे वैसे भी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं गूगल डेवलपर्स की तरफ से। तो हमारी ये जॉब होती है कि हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे फेलो स्टूडेंट्स होते हैं और कोडलेट्स होते हैं उनके बारे में उन्हें गाइड करना, और इंक्लूडिंग दिस ऑल थिंग। जैसे भी हमें रिसोर्सेज जैसे जैसे मिलते जाते हैं, जो भी डीएससी लीड्स होते हैं वो कुछ इवेंट्स भी बना के उसे पुश कर रहे होते हैं न्यूज़ लेटर्स में। जैसे कि आई थिंक कुमेल भाई ने कहा था कि आप जो है वो न्यूज़ लेटर्स वगैरह को जो है वो लाइक लिंक इन कर सकते हैं अपने आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। ठीक है, सेम वे में जैसे अभी बीच में फ्लटर के कुछ इवेंट्स आए थे, ठीक है, तो 1 मंथ का वो एक टाइम पीरियड था, और उसमें पर वीक के बेसिस पे गूगल डेवलपर्स आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो डीएससी लीड्स ने क्या किया था कि वो सारे रिसोर्सेज अपने फेलो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए थे। तो या एडिंग द कंट्रीब्यूशन इन द गूगल टेक्नोलॉजीज, ताकि जो फेलो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें। Perfect. There's also one thing that I feel like is very noticeable here. Raheel, who is also here, made an extension for us that was recognized, and that is recognized globally. So Raheel, do you want to elaborate more on that? Yeah, sure.
So first of all, let me explain what she is talking about. और मैं उसके बाद आप लोगों को शेयर करके भी दिखा दूँ कि what's been going and all. So जो इसका मेन नीच था, बेसिकली प्रोग्राम का नीच ये होता है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास सारी जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं सब कुछ आपके पास चल के आ जाएंगे. यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ एंड योर कम्युनिटी टू. So that's the thing. If you do something like to help the community, you're also gonna get something out of it. So basically, जो अभी जैसे कुमैल बता रहा था प्लेटफॉर्म के बारे में, so there is this platform जिसके ऊपर सारे campuses registered होते हैं, and we have to create different sessions on that platform जिसके ऊपर आप लोग register करते हैं, then you all can attend the sessions. So there is this hectic thing that कि उस platform पे login करने का बहुत मुश्किल तरीका है. So like if anyone wants to join a session, उसको पहले 2-3 फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे and all this stuff going on. Other than that, we can do कि Google फॉर्म का लिंक शेयर करते हैं. So everyone can just fill out the Google form क्योंकि Google form को सबको पता है. So that was the thing. But in the platform, we don't have this facility to just give it a CSV file because Google form generates it. So give it a CSV file and just load all the attendees. So yeah. So basically, what I did it for my team before. Just to automate this process. Actually, if you are good at something, just do it. So I have been always a tech guy. So I built this software. So Nimra, can I share my screen as well so these guys Yes. can have a look at it? So, okay. I'll stop sharing. Okay, share now. Just let me know if you guys can see my screen. So is it visible? Yes, Yes, Raheel, right. yes. Okay. Visible. So cool. So basically, this is my GitHub profile. By the way, if you want to follow it, just go for it, and I will also share the link in the chat. I can see Kumail is smiling. So basically, what I did, I created this extension for the platform. It was like a total GUI based software. I just पहले मैंने सिर्फ code लिखा था, and it was like for me कि मैं यूज करके इसको ऑटोमेट करके अपना काम इससे कर लूँ. And then I shared it in the group. We have a WhatsApp group. So the Google manager, who is Saad Hamid, if you know him, so he just sent me a voice note के राहिल ये तो मैं बड़ी cool चीज़ की है, just send me the details. I'll share with others as well, other Googlers, so they can just provide this extension to other leads as well in the different countries ना. So उसके बाद ये हुआ, so I just developed the GUI ताकि जिसको मतलब पूरा सब चीज़ें इंस्टॉल वगैरह नहीं करनी, so he can also do it. So I just send him, और फिर उसके बाद it was really good thing happened कि I start getting emails from Googlers that is really good. That is something we should all do with the tech. Basically tech यही करता है कि आपके काम को आसान कर देता है, and if you are smart, you have to apply the tech in the field where you are getting interrupted or facing any problem or as well. So that was the thing, and after that DSC leads from USA, DSC leads from Turkey, DSC leads from Pakistan, we all were using this extension, and I was like, I just got it in 1 or 2 hours, or like it was really good thing happened. So that's the thing, and it is like the open source contribution. Okay, so if you know about open source, just you can see it, the exposure of the open source you can get. So that was the thing. कोई मतलब कुछ ज़रूरी नहीं कि you can contribute into particular stuff in your community or your club. If you're good at anything, just do it for your club. If you're good at graphic designing, you can just design a logo, a creative logo for your club as well. Maybe someone just find it really great and connect with you. So these are the benefits. One of the benefits you are going to get, the best network ever, which I noticed in this program.
the people from overall the world kept contacting us that we have this opportunity for you, we have this opportunity. जैसे फवाद बात कर रहा था अभी कि if you are in a DSC, so you are not gonna regret कि मेरे पास कोई job opportunity नहीं है and all this stuff going on. So yeah, that was a little thing about me about the extension. This little extension, you can also check it out after going my profile and following me on GitHub. So yes, that's the thing. और एक बाकी DSC leads के लिए accessible है, so you guys not gonna have its access. Other than that, if you can apply for it right now, you become a DSC lead, फिर उसके बाद आप extension use कर सकते हैं. So yeah, that's the thing. And yes, Thank अच्छा, you. मैं इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा कि इन द इंडस्ट्री अगर आप डेवलपर है ना तो आपके पास GitHub, Stack Overflow और LinkedIn होना चाहिए. मतलब these three are really important in the market. अगर आप कल को मार्केट में जाते हैं ना, कोई बंदा आपसे ये नहीं कहेगा कि यार आपने अच्छा कितना काम किया, वो कहेगा भाई आप मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखा दो. तो पोर्टफोलियो इज GitHub, Stack Overflow and LinkedIn. These three are really important. अगर अब आप बेशक बाकी लीड से पूछ सकते हैं, दे आर ऑनलाइन एंड दे नो कि इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में. तो या मेक श्योर कि आप GitHub सीखें, आप Stack Overflow सीखें. देखें, ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ आपको आता हो, बट यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ें सीख जाते हैं. लाइक जिस तरह अब मैं हूँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो DSC में आगे सीखी हैं, उससे पहले मुझे नहीं आती थी. तो टाइम के साथ ही बंदा सीखता है, बट मेक श्योर कि आप वो चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करें. Exactly. और मैं लाहिल का पॉइंट लेके चलूंगी आगे, कम्युनिटी बिल्डिंग वाला. It's like a family. It's a DSC family that you get. जैसे ही आप enroll हो जाते हैं as a DSC lead in a Google community, it's the basic benefit and the basic thing कि आप लोग it's the most precious thing you could ever get. So it's like like-minded people from all over the world, and they're a global community, and you're just one click away, जैसे निम्रा ने आपको बताया. और it's like how you can contact with them and how they contact with you. It's amazing. So एक तो बात ये हो गई कि गूगल कम्युनिटी, और जिस तरह फवाद ने भी लिंक्डइन और इस तरह की बात की, लिंक्डइन पे आप जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं अपनी गूगल कम्युनिटी के साथ, दैट इज़ द बेस्ट. एंड सिंपल इज़ दैट जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो की बात की, जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जितने ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो बेहतर होगा, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू ऑल. और GitHub पे जितना ज़्यादा आप कोड ओपन सोर्स करते हैं ना, उससे पता चलता है कि आप कम्युनिटी के कितने हेल्पर हैं और आप कम्युनिटी में कितना कंट्रीब्यूट करें. फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह राहिल ने कोड बनाया तो इट वाज लाइक वो अपने तक भी रख सकता था, बट इट वाज अ प्रेशियस थिंग, उसने एक बहुत ऐसी चीज़ बनाई थी जो कि लाइक that was nowhere to be found, और लोगों को इतनी ज़्यादा वो needed थी कि they're coming from all over the world and all that. So but राहिल ने क्या किया, उसको open source कर दिया, उसको GitHub पे डाल दिया, और it's open for all of them, for the world to see. And if they want to change something in it, if they don't like it, they can also like modify it. So that's the basic thing you have to do, to contribute in the community. और स्वैग्स की बात करूंगी, जहाँ तक मैं DSC आपको स्वैग्स देते हैं, सबमिट्स कराते हैं and all that. I have these stickers. Wait, let me show you. Can you see these? So yeah, these are from Google, and these are some Android ones. And also we have these bottles. It's developer student clubs written on it, if you see that. Also, we had this amazing initiative from Google that was Cloud Seco, and it was awesome. It was like we have to learn something and then we get swags too. That's pretty cool. And we got these bottles. You can see this little Smurf on it. I like Smurfs. And we have this like a small diary. It's like this because I like it that way. I still haven't opened it. Okay, so that was all I could, show you. Alright, so I think I would just go with continuing the benefits actually.
So as Ikra mentioned about community building and swag. So apart from that, in my experience, what were the benefits actually in being in the DSC club? It was like when I never thought like people who would come else without the DSC club, they wouldn't have come together for a single cause or single purpose or motive to achieve. So actually through DSC we got to bring people together, and who the people who we didn't even imagine could come together with if DSC wasn't there. So like in a personal opinion, and apart from that. It's really important, you get into clubs, and most importantly, from your undergraduate studies, you should be, joining these student clubs and communities so that they should add your experience as well, and the value to your resume and stuff. So once all of these things are happening, you should remember that you get respect, you earn respect, and you get the respect like from everywhere. Like everyone is like, knows you, tries to know you. Could it be in university? Could it be, from all over the world? So like people try to know you and try to respect you for the work you do, because, if you are doing something great, so obviously you will be respected for it, as Rahil did something great for us too. And yeah, for the virtual, okay, so that since the pandemic started, we actually shifted towards virtual platforms and stuff. So Clubhouse, Teams and Meets, all of the platforms where we started actually having our classes as well. So like we now have the access to virtual meetups, and we can call out to different GDEs. As Nimra mentioned, it was like a call away that you can contact your GDEs and for some specific events to come as a speaker or stuff. So yeah, we can have virtual meetups as well, and mentorships as well from GDEs and from everyone out there in the world actually. And also through DSC and being a part of the DSC, could it be from as a core team member or could it be as a lead, you get to realize the importance of professional dealing with the people. You deal accordingly, and you are like in a workplace or workspace, and that you have to deal with people like according to their mindsets or according to their goals and whatever they are doing. So you have to deal professionally. So that's how you start learning from your student age. And then as a lot of things were mentioned about technical thingy, so like we get to hold on to the technical and soft skills together. So soft skills could be communication, networking, and all of the things which were previously discussed. So these are the plus points and the benefits of becoming a DSC lead or becoming a part of DSC. Could it be as a member, normal member, or a core team member? Yeah, that's pretty much it. So yeah, so we are going towards the ending right now. Basically, I was just checking the chats. So जो ये हमारा session था, basically it was about के how to apply as a DSC lead ना. लेकिन there are many people are there के जो बोल रहे हैं कि DSC है क्या. मैं like एक line में बिल्कुल इसको define कर देता हूँ, and then I'll move towards the main part के जो eligibility criteria है and all this stuff, how you apply. तो वो डिस्कस कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल DSC इज ऑल अबाउट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. जो मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवरऑल पाकिस्तान ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है एंड देयर इज नो फिजिकल प्रैक्टिस और व्हाटएवर. सो पूरी दुनिया में यही होता है कि थ्योरी पढ़ाई जाती है एंड यू हैव टू डू योर प्रैक्टिकल वर्क एज वेल. You have to work on side projects and all this stuff, but for that Google provides you the opportunity to do their stuff. They host they connect you with the different Googlers. If you become a DSC lead, you will be having training sessions from Googlers, and then you will be connecting to the like-minded people like you. So that's a really good thing. And after that, you have to help in your campus. If I am a DSC lead of UIT, so I'll be helping the students in UIT to get these technologies, to work on these technologies. Okay, so that is all about the DSC. Okay, so and the networking opportunities you get, the community you get, that is the best part of it. So let me jump towards the
eligibility criteria. So first of all, यहाँ पर काफी students पूछ रहे हैं कि if is it mandatory to be a like tech guru or something? No. If you are not good in tech, you can also be a DSC lead, first of all. So the thing is, you have to be a good leader to becoming a DSC lead. तो जो जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं एंड ऑल दिस स्टफ गोइंग ऑन, सो दे जज यू कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज एंड ऑल दिस स्टफ. सो जैसे कि अभी आप लोग को स्लाइड्स दिख रही हैं, सो देयर इज दिस थिंग कि आपका कम से कम 1 साल रहता हो सही है यूनिवर्सिटी एंड होने में, एंड यू कैन गिव योर टाइम टू दिस प्रोग्राम. और आप यूनिवर्सिटी के किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए. इट डजंट मैटर कि आपकी यूनिवर्सिटी में DSC एग्जिस्ट करता है या नहीं. You can also be the first one. I am the first one this year. Okay, so yeah, can commit to program for 1 year. You have to do your responsibilities and all this stuff. Again, technical understanding, maybe like if you are if you don't have any technical understanding, you should have somehow. Okay, so then at the end of this program, you are gonna have a really strong technical understanding as well. And this is the only program that I have noticed in Pakistan who is focusing on technical skills as well, because there is this solution challenge at the end of this program, which is like really cool thing. We can just build the solution of local solution if we want, if we have any idea, so we can just build the solution and submit it into the solution challenge. So yeah, that's the thing, and that is why we are having the trainings from Googlers throughout there. So उसके बाद ये होता है कि have experience with event planning or leading a team. You have to know these things, because हमें से ज़्यादातर लोग हैं, we have been a part of different societies as well, जैसे कि ACM, IEEE and all this stuff going on in I guess तकरीबन सब universities में होती हैं societies. And other than that, उसके साथ have some connections to the local developer community, because you will be arranging the sessions. अच्छा, it is not mandatory, because it's like now you have LinkedIn. If you not have LinkedIn, so just install it and just register for it. LinkedIn पे आप किसको मैसेज करो कि hello, my name is this and I am a DSC lead. That is the one thing that I noticed. They like really respect you if they are from Google, from Microsoft, and any tech group company. So they are gonna respect you, and they will be like, yeah, fine for me. I'll be speaker for your session. Just let me know about the details. So that's a really good thing. You have to understand how the connection building works and all that stuff. These are the some points that you are gonna have. Yeah, so the basic need of the program is to minimum you have to host एक सेशन आपने एक महीने में करवाना है जरूर, and at least every 3 months ना, बिल्कुल minimum. So like there are like different seasons, there are like different tech seasons. सबसे पहले Cloud Seeker आता है, फिर उसके बाद Android Study Jams where we have to focus on Kotlin and all that stuff. Then उसके बाद Flutter आ जाता है, then Firebase, then Solution Challenge. So these are like 3 or 4 seasons you have to focus on. और इसके मतलब आप एक डेढ़ महीने इन सब चीज़ों को देख रहे होते, so you get to know about everything now. So yeah, that's the thing. जो कुमैल भी डिस्कस कर रहा था कि या फवाद डिस्कस कर रहा था कि you become like really aware of these new technologies related to Google or any other. So yeah, other than that, what we have in the next slide, or should I just move towards the form? Okay, so that's great. I'm going to discuss something about the application form, because it is the most important thing. काफ़ी बच्चे होते हैं कि बहुत कोई सुस्ती में आ गए ना, बहुत छोटे सा लिख देते, they don't share their knowledge about their self as well. So basically what you have to do, अगर इसमें जैसे कि particular question लिखा है, you have to give it a detailed response. अच्छा, इससे पहले ना आप like you have to do your research, you have to read different blogs, go to different websites and connect to us as well. We are open to help. Okay, so that's the thing, you have to research about the program. If you are सिर्फ DSC के बारे में नहीं बता रहा मैं कि कहीं भी आपने अप्लाई करना है, so you have to understand कि what this program is about. इसका मतलब फोकस क्या है, what they are asking for it. कि जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे
उनकी qualities क्या थी. So that's the thing. That is what you have to do. Just don't apply if you didn't do research. So research first and then answer these questions. अब मैं answer में बता नहीं सकता because everyone has their own perspective और वो अपने perspective को लेके ही apply करें, so it is good for them. And if you want to be a DSC lead, so if you are already a lead, you just need a tag for DSC. If you are a lead, if you have qualities, you just have to apply for it. You are gonna get interview, and then you will be selected. Just have this understanding with you. Okay. So like there are these questions. What is your experience in leading a project or team? What technology do you find most interesting and why? So yeah, and then after that you have to submit 90-second video. So if they are asking for a 90-second video, you don't exceed for like आप limit exceed नहीं कर सकते उसकी, सही है? So that's the thing. So that is what you have to do. 90 seconds से ज़्यादा की video नहीं आप बनाओगे. So yes, other than that, इसके बाद कोई slide है तो just let me know if I am missing. Rahil. Okay. I think we should explain more about the questions. So Okay, Ikra, do you wanna do that? sure. Yeah, sure. So उसके बाद मतलब कि questions. Rahil, you give it up to me. Okay, yeah, sure thing. Okay. Talking about application form, we have the first question. जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे अभी तक, अगर आपने फॉर्म ओपन किया है, लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है. अगर किसी ने नहीं भी ओपन किया तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर देती हूँ, एंड यू कैन ओपन इट. और आप लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन इज योर नेम ऑफ कोर्स एंड देन द नॉमिनेशन कोड. नॉमिनेशन कोड की हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज योर सोशल लिंक्स. So if we talk about the social links, let me just share the slides with, the website with you real quick so you can open it with you. Okay, so it's there in the chat. You guys can open it with you. Right, so it's about the social links. जैसे कि पहले हमने बात की LinkedIn, GitHub, your Facebook, and it all should be so professional, and you should have good grip on all of these. तो जैसा जितनी आप अपनी प्रोफाइल प्रोफेशनल बनाएंगे ना, उतना आपके चांसेस ज़्यादा हैं, because the main thing they ask, the most the best thing, the first thing they see is your social profiles, how you interact socially, and how much you are interacting with the tech community, and how much are you sharing people about the things that you are interested in. So that's the first thing they see, because that's what defines you. And if we talk about the GitHub, and जैसे कि राहिल ने बात की अभी GitHub की, फवाद ने बात की Stack Overflow की, उसमें आप क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे कि आप लाइक जो रिलेटेड है ना आपके काम से, उनको आप ज़रूर क्वेश्चंस करें उससे रिलेटेड, और आप उनको आंसर्स करें. इससे सिमिलरली इज द केस विद फेसबुक. अक्सर मैं देख रही होती हूँ लोगों के बायो में लिखा होता है हार्ट ब्रेकर एंड ऑल दैट, यू डोंट वांट दैट शिट. So it's like you have to do something better than that. तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाएं and do something beautiful, like which defines you. For example, if I'm a Flutter developer, I'll write Ikra Khatak, and the bio will be Flutter developer, and I have done this, and that. So if you're a core team member, write about it that you are a core team member. Be proud of it that you are a core team member of a DSC chapter. कुछ लोग core team में हैं लेकिन वो समझते हैं कि it's like nothing. It's it's just the lead is everything, but that is not the case. Lead is dependent on you, and it is your duty to be the one to provide with good things that a lead needs. So it's the core team members are the basic things. So just be proud on that. And the last thing I would like to say is that if you have any accomplishments, if you have any certificates, do mention them in your LinkedIn profile. They give you a specific a fill in the blank that you have to put your certificates in. If you have any certificates, just put that there. And if you have any accomplishments, put them in your Facebook and all that. Do something, be social, and be social in the way of helping a community.
and building a community. So that's what I'm going to say about this. अच्छा, इसमें अब मैं एक और चीज़ एडिशन करना चाहूँगा कि बेसिकली इस टाइप का सवाल होता है कि आपका जो है बेसिकली क्या मोटिवेशन है एक डेवलपर स्टूडेंट क्लब रन करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी में। तो देखें, अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं है ना तो आप दूसरे बंदे को मोटिवेट नहीं कर सकते। देखें, आप तो आपके अंदर पहले एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आप दूसरे बंदे को जो है वो चीज़ें सिखा सकें, या एटलीस्ट इतना ना भी होना तो आप एटलीस्ट एक दूसरे बंदे को जो है वो इंगेज तो कर सकें ना कि एक्टिविटी में कि यार मैंने जो है आप लेट सपोज, चलिए मैं सिंपल कर देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि यार आप लेट सपोज इस तरह कर लें कि इसको ना थोड़ा इजी कर देते हैं कि आप जो है अब अपनी यूनिवर्सिटी में ना एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, छोटा सा, डीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, लोकल बात कर रहा हूँ। आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोई छोटा सा इवेंट करवा रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट किया, तो आपको उस इवेंट से क्या मोटिवेशन मिली कि आपने उस इवेंट में क्या सीखा। तो अब देखिए मोटिवेशन जो है ना ये आप अपने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, थोड़ा सा सर्च करना होगा, या थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को देख के वह बताना होगा कि आपका जो है बेसिकली एक क्लब रन कर लेके क्या मोटिवेशन होनी चाहिए। देखिए मेरे लिए तो मोटिवेशन ये थी कि मैं जो है स्टार्ट से ये था कि मेरा एक माइंडसेट मैंने बनाया हुआ था कि लोगों को मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज सिखानी है, ठीक है। अब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज क्या है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपके बहुत सारी हैं, मतलब मैं पहले से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंडल्ज करता। तो एक चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए ना, दैट शुड बी कि आपका माइंड जो है या आपका जो दिल है ना बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपका हमेशा यही गोल होना चाहिए कि मैंने एक बंदे की मदद करनी है, क्योंकि देखिए वो बंदा जो है कल को अगर किसी जगह पे जाएगा ना तो वो आपको दुआएं देगा, ठीक है। इट्स नॉट रिलेटेड टू डीएससी, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैंने अगर कहूँ ना कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जिनके पास सारा कुछ था लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। मतलब उनको स्किल्स भी आती हैं, उनके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, बट उनके पास एक रास्ता ही नहीं है कि यार हम निकले। अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा लोग हैं, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम आई एम साइंसेज पेशावर आर फ्रॉम फाटा, ठीक है। दे आर वेरी वेरी जीनियस पीपल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स होती हैं उनके पास, लेकिन मसला क्या है कि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ही नहीं था कि वो उस प्लेटफॉर्म को लेके ना चल सकें और अपने आप को जो है एक स्टेज पर लेकर जा सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी डीएससी का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों को फ़ायदा दिया है। ये मेरी मोटिवेशन थी यार, मैंने उन लोगों को जो है एक चांस देना है कि आप लोग आए भाई, ये प्लेटफॉर्म में लेकर आया हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे आप जितना चाहें, जितना एक्सप्लोर करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये होती है मोटिवेशन। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मोटिवेट होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आप इज फातिमा। Okay, so I'll be explaining this question कि हम like what is your experience in leading a project or a team. So guys, if you come across this question, how are you supposed to answer this is pretty simple. For example, if you have been like in college, or you might be an undergraduate student, आप लोगों ने किसी सेमेस्टर में किसी प्रोजेक्ट को लीड किया होगा अंडर द टीम ऑफ 2 or 3. सो tell them your experience and कैसा रहा एक्सपीरियंस in leading that project or a team. If you have been in societies, तो आप लोग उनकी mention कर सकते हैं कोई भी ऐसा experience जो unique हो and which makes you stand out for the application, because since they will get a lot of applications, so if you are like focusing on something unique experience तो वो count करेगा. For me, if I were to write things about developer student clubs में या किसी और project या team में as a leading opportunity मुझे मिली, तो क्या ऐसी चीज़ होती है, एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसमें। आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते, आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग होते हैं और उनका सेम गोल होता है, सेम कंसर्न्स होते हैं कि आपको एक चीज़ को अचीव करना है. सो दे वर्क अलॉन्ग विथ यू, दे कैन बी मोर टैलेंटेड देन यू. सो इट्स लाइक प्रीटी सिंपल कि वी बीन अ लीड हम सब कुछ नहीं है. वी आर लाइक डिपेंडेंट ऑन आवर core team members, as our previous leads mentioned that too. तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप उस लीडिंग पोजीशन पे आते हैं तो आप you help them, you learn things, और वो भी आपको लर्निंग के लिए कुछ कंटेंट देते हैं to learn. It has been a lot in my team as well. So it's like हम लोगों को equal chances और opportunities मिलती हैं to do that, but since leading
a project is something that you have to make every one of your team जिसमें सबके same motives हो और same ही for example, for instance, if you're a DSC lead, so you're considering that you have to make a series of events or a boot camp, so you make your entire core team work along with you to achieve that boot camp, to organize such events, to talk to speakers, to gather the audience every day and to look on the matters, technical problems. So this is how you lead a team. Lead is like, it's like leader में वही difference होता है कि he doesn't think he's the one and all, in all of the ranks and positions. So remember that alone we can do so little, but together we can do a lot much. So if you are a leader, be a generous and वो leader जो एक rude ना हो, but be a leader जो एक sympathy देने वाला भी हो, because since if you will be rude, nobody will get along with you for a longer run. So don't be rude, but rather be rather be a person who could take everyone else along with you for this journey. And to that point I just conclude कि भाई experience ऐसा लिखें जिसमें आपको एक अलग ही बंदे अलग experience हो ताकि उनको एक influence हो जाए. So yeah, best of luck for that question. अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी एडिशन करना चाहूँगा जो फातिमा ने भी बात की है ना, कि देखें मेरे लिए एक और मोटिवेशन ये भी था कि मैं उस मोटिवेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा और भी कर देता हूँ. अगर आप में से कोई कहता है कि यार देखो, बीइंग अ सीनियर मोस्ट स्टूडेंट, ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा सीनियर स्टूडेंट्स गुजरे हैं. उन्होंने कभी भी कोई जिक्र नहीं किया कि यार इस तरह की कोई कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं. इधर इट वाज मी और इधर इट वाज माय सम ऑफ फ्रेंड्स के हम लोगों ने बैठ के एक्सप्लोर किया चीज़ें. लेकिन जो लास्ट पेंडेमिक था ना, वो हमने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज किए. बट द बेस्ट पार्ट वाज के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने खुद एक्सप्लोर की और उसमें मुझे ये गूगल की कम्युनिटी नज़र आई. तो देखें, चीज़ें एक्सप्लोर करने से आती हैं और मोटिवेशन मेरी यही थी कि यार अब मैं सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स और मैं जूनियर्स को पढ़ा रहा हूँ जो कि अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं, उनको मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ. तो दैट वाज द रियल फीलिंग्स एंड मोटिवेशन जो कि मुझे आज मतलब एक फ़ख्र से कहना पड़ेगा कि अगर यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ ना तो हर बंदा मुझे कहता है अच्छा फवाद है. तो वो आपका एक रिलेशन भी बन जाता है और आप जो है बेसिकली लोगों की अगर मदद करते हैं ना तो आपको दुआ भी मिलती है. और आप देखें, आपकी नॉलेज में कभी भी कमी नहीं आती, आपकी नॉलेज हमेशा ज़्यादा होती है शेयरिंग करने से. इस बात पे मेरे ख्याल से हर बंदा एग्री करेगा मुझसे. Yes, exactly. Indeed. Okay. So the last two questions. What technology do you find the most interesting and why? And what is your experience with the technology? You can talk about anything. It doesn't necessarily has to be a Google technology, but it can be anything. But the thing is, you need to be passionate about it. अगर आपको इतना ज़्यादा उसका नहीं पता है, but you're willing to learn for it, that is completely fine. Write everything down. You don't have a limit to the question. कोई limit नहीं है. आप आराम से अपनी पूरी चीज़ explain करो कि वो technology. Why do you think that technology has is different from all the other technologies and why is that going to make an impact? Similarly, जो आपकी 90 सेकंड की वीडियो होगी, वीडियो की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो आपका देखना चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी स्टाइल, आपका स्टाइल क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका पूरा हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ. ठीक है, सो मेक श्योर कि योर वीडियो इज द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ. अगर आपकी वीडियो इस तरह से है कि वो आपको पूरी तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर रही, देन दैट इज नॉट वन ऑफ द वीडियोज दैट यू वुड वांट टू पोर्ट्रे. टेक एन एग्जांपल. हम लोग की जो वीडियोज हैं उनकी एग्जांपल ले लो आप लोग. Go through that. If you need any questions, make sure to ask us for your help. But make sure that जो आपकी वीडियो है that is completely reflecting the way you are and the way you're going to lead your team. Okay? Last year questions हमारे different थे वैसे वीडियो के. इस साल थोड़ा सा हल्का सा different है. तो आप हमारी वीडियो से सिर्फ इंस्पिरेशन ही ले सकते हो. इंस्पिरेशन लो and then make sure you're building a very nice. Another very important part before we move on to nomination coaches कि आप वीडियो को थोड़ा सा edit करो. There are very simple softwares. Wondershare हो गया, आपका Filmora हो गया. That is very user friendly. आप उसका trial period लो, अपनी वीडियो को थोड़ा सा edit करो. You know, it is very important कि वो वीडियो कोई it's like a 1 minute pitch for yourself. अगर आपकी वो 1 minute pitch effective है, that's a $1 million thing that you'll get. So make sure कि आप जब अपनी वीडियो बना रहे हो ना, उसको थोड़ा सा edit करो. Make it presentable. Write your socials down. Make sure you include your GitHub link there. So do that. Okay.
अनदर थिंग, नॉमिनेशन कोड, हर लीड के पास एक नॉमिनेशन कोड होता है, वो नॉमिनेशन कोड 3 लोगों को दे सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। वो ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि उन्होंने किस किस को दिया है ऑफ कोर्स, बट नॉमिनेशन कोड का हर लीड के पास क्राइटेरिया होता है। जैसे फवाद और IM साइंसेज और हबीब यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये है कि आपको एक वीडियो सबमिट करनी है, उसकी डेडलाइन 1 में की है, मेरी डेडलाइन 27 अप्रैल की है। So submit that video. We are going to shortlist 3 people for that, और हम लोग उसमें से nomination code दे देंगे। Mostly nomination code आप अपने core team members को देते हो तो obviously priority उनको थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर आप वीडियो सबमिट कर रहे हो और वो भी वीडियो सबमिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको एक एज मिलेगा, बट that is basically कि सिर्फ इसलिए because they've been working for us. Other than this, अगर आपकी nomination code नहीं है आपके पास, please do not lose motivation. हमारे पास होता हम तो सबको दे देते, लेकिन we are restricted to only 3 people. So if you don't have the nomination code, make sure your application is so strong that even without the nomination code, you show up here. You become the lead. Some of us didn't have nomination codes. I didn't have a nomination code when I applied, but I am a DSC lead. So it's not impossible to be a DSC lead without a nomination code. So make sure कि ये आपका demotivating factor नहीं हो, इससे demotivate ना हो आप लोग। ये सिर्फ एक एज होती है जो दी जाती है उन लोगों के लिए जिनको जो हमारे लिए काम करते आ रहे हैं इतने टाइम तक, 1 साल से, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। कुछ भी नहीं होगा, so that is completely fine. Okay, let's move on. So now we're moving on to the QA sessions. Please ask any questions that you have. अच्छा, And इसी में we मैं will- एडिशन करना चाहूंगा एक कि देखें, हमें भी, हम जब लीड्स बने तो हम में से काफी ज्यादा लोगों को कोई नॉमिनेशन कोड नहीं मिला था, बट देखें आप इस चीज पे ना लूज करें कि नॉमिनेशन कोड नहीं, आपकी बाकी देखें, आप अपना प्रोफाइल देखें, आपकी सोशल एक्टिविटीज कितनी है, आप कितने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या कितने क्लब्स के साथ आपने काम कर चुके हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको जो है बूस्टअप देता है। हमेशा एक एप्लीकेशन में आपको ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा बूस्टअप देती हैं, आपके गिटहब प्रोफाइल दोगे, ये बाकी सारी चीजें, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक नॉमिनेशन कोड हो। ये सारी चीजें आपके एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट देती हैं, तो डोंट बी सैड के यार नॉमिनेशन कोड नहीं। लीड देखें, वो बंदा आपकी एप्लीकेशन पढ़ के ही इम्प्रेस हो जाए, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप नॉमिनेशन करके जाएं। तो आप खुद ही उस एप्लीकेशन को इतना स्ट्रांग बनाएं कि उससे जो है बेसिकली आपकी सिलेक्शन जो है स्ट्रांग हो जाए। I think अब Q&A start कर देते हैं because we are running short on time and we would want कि maximum आपके Q&As clear करें। ठीक है, please one thing keep in mind कि कोई personal query entertain नहीं करेंगे application में, but कोई भी आपका general सवाल हो, कोई ऐसी चीज जो हमें लगता है कि we can help you out in that regard, we'll surely do it. And now please make sure to ask as many questions as you can and we will try to answer almost each one of them. And make sure when you're asking questions, please उसको strictly application related रखो. This is the session for that. कोई और question है, reach out to us on LinkedIn या कहीं भी और and we'll answer those. But for this session, make sure कि आप लोग you're asking questions that are restricted to this topic. Exactly. And let That me is the go first- through these questions which I saw in the chat somewhere up above. So there's I think Fawad mentioned this question before. When did this club started and when and how many members are there in Pakistan? So let me just say it again. Okay, it started in 2019 and we have 43 leads right now in Pakistan, and overall there are 6,000 above in the global market. So last year, I guess 600 plus people applied for it. And out of that, 43 leads only were selected. And some of us are here sitting with you. So is there any special criteria to apply? I guess it's all in the website and it has been told to you by Raheel. So if you have still any query, ask away. GitHub profile does not matter a lot. It of course has an effect on your application, but it does not matter a lot. But make sure when you are presenting your GitHub profile, एक दफा 10 मिनट बैठ के उसको देख लो. Make sure you're adding your status there. आप वहाँ पे अपना काम दिखा रहे हो. It is the reflection of your technical skills. कोई भी project अच्छा, मैं इस चीज में ऐड करूंगा, सॉरी टू कट यू ऑफ निम्रा, आपके GitHub प्रोफाइल से ज्यादा जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपका LinkedIn प्रोफाइल है। क्योंकि देखिए, आपको मैं इसकी वजह बताता हूँ, आप बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो, डजंट मैटर,
ठीक है, आप बहुत एक्सक्विजिटली कोई कोडर नहीं हो, इट डजंट मैटर फॉर डीएससी प्रोग्राम। व्हाट मैटर्स कि आप कितने सोशल हो। अगर फर्स्ट आप बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर रहे हो, ये चीज बड़ी मैटर करेगी। तो उससे एक ये टच जाता है कि बंदा सोशल है, और एक कम्युनिटी बिल्डर ऑलवेज एक सोशल बंदा होगा कि जिसको लोगों के साथ कनेक्ट करना आता है। एंड स्पेशली योर लिंक्डइन इसलिए क्योंकि उससे आपका एक प्रोफेशनल आउटलुक आता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को काम नहीं आता, बट उनकी प्रोफेशनल आउटलुक से पता लगता है कि ये बंदा मोल्ड हो सकता है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। तो सबसे ज्यादा जिसको आपको फोकस करना है ना, वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है। ठीक है, और उसके मैं क्विक 2 सेकंड 3 सेकंड में कुछ टिप्स दूंगा कि जो बहुत जरूरी होते हैं, जो मैं लोगों में ऑब्जर्व करता हूँ, और मैं पर्सनली उनको मतलब कहता हूँ कि यार ये बंदा रिजेक्शन लिस्ट में है मेरी पर्सनली, अगर मैं भी किसी चीज के लिए हायर कर रहा हूँ। तो जैसा सजेशन एंड ओपिनियन, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू अलॉट। लिंक्डइन प्रोफाइल में पहली चीज आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो हर बंदे ने देखनी है। ठीक है, अक्सर लोग आपकी प्रोफाइल कहीं आपने कमेंट किया हुआ खोल के आपकी प्रोफाइल की पिक्चर जरूर देखेंगे। तो आपकी पिक्चर बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। साइड पोजेस, फैशन स्टाइलिंग नहीं मारनी वहां पे आपने। ये आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये टिकटॉक नहीं है, ये प्रोफेशनल अकाउंट है। यहाँ पे आपकी एक फ्रंट डिसिप्लिन फॉर्मल वे में एक पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आपने फजूल पिक्चर नहीं लगानी ऑनेस्टली। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी ये चीज में बहुत ज्यादा मतलब एक अनअवेयर है आई थिंक। दूसरी चीज है कि आप एक डिस्क्रिप्शन अपनी जरूर लिखें। तो बेसिकली अगर कोई रिक्रूटर है, चाहे वो डीएससी का है, कहीं भी है, ठीक है, तो वही चीज देखेगा कि बंदा अपने आप को 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन कैसे कर सकता है। ठीक है, कि 4-5 लाइनों में आपकी जिंदगी के 20 साल की उम्र, 21 साल, आप किस तरह से उसको समराइज कर सकते हो। ये चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद आपके मतलब क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं नहीं है, वो तो एक टाइम के साथ चीजें आती हैं। और स्पेशली इन दिस डीएससी प्रोग्राम बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो नॉट प्रॉब्लम, डोंट वरी, यू कैन स्टिल गेट इन दिस प्रोग्राम। द अल्टीमेट चीज है कि आप कितने बॉन्डिंग में अच्छे हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं। तो उसके लिए आपका एक जो राइट वे में देख सकते हैं ना, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है कि आप कम्युनिटी को ऑलरेडी किस तरह आप लिंक्डइन में कोई आर्टिकल लिखो, वो आपके रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। कोई बंदा, कोई भी रिक्रूटर खोल के आपकी प्रोफाइल देख सकता है कि आप कौन सी चीजों को लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, कौन सी पोस्ट लगाई है। उसी से आइडिया हो जाता है इस बंदे का माइंडसेट कैसा है। तो बहुत ओपनली कोई भी बंदा आपको जज कर सकता है उस तरह से, स्पेशली रिक्रूटर्स। तो लिंक्डइन बहुत फोकस्ड होके सेट रखो, एंड उसके जो है ना चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे डीसी के प्रोग्राम में आने के लिए स्पेशली। ठीक है, यस, So ताहिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट कोई भी अप्लाई कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड हो वेरी स्ट्रिक्टली, बट इतना होना चाहिए कि आपको यू शुड हैव द रिलेटिवली बेटर नॉलेज ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की और आप अप्लाई करो। सो मेक श्योर यू हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या हो रहा है, उसमें होता क्या है। So as long as you know that and you have the passion to lead a community, आप कर सकते हो बिल्कुल। तो make sure you're applying. अब please अपने आप को, anyone who's applying, do not doubt your skill set. Everyone here is very skilled. किसी ना किसी चीज में एक बंदा हर चीज expertise होती है उसमें। So make sure you're giving it your best and highlight your expertise. कोई expertise छोटी बड़ी नहीं होती है। जो चीज आपको बहुत अच्छी आती है उसको highlight करो अपनी application में to the best that you can. ठीक है, with this we are going to conclude our session. Thank you very much for showing up. If you have any questions, हम लोगों ने हमारी LinkedIn share कर दी है। जी। I think there's a very important question. I think Raheel is gonna answer that by Mubin Anwar. What is the main goal of DSC? I think that's a very important question. One should know why we are applying for DSC. Okay, go for it, Raheel. So I already discussed it before, but let me just explain you as well. So basically DSC all about is building a gap between theory and practice and giving you a community so you can network with like-minded people and groom yourself as well. So जितनी भी पूरी दुनिया में communities हैं उनका basically purpose ये होता है so they can connect the like-minded people and they can produce they can be more productive and produce some really good initiatives or really good products as well. So yeah, that's the thing. That is what I can explain in a single line. And if you want to get into like parts and all that stuff, so you have to like watch this section again. Yeah. Thank you. Yeah, we will upload it on YouTube and we will provide you the links in the WhatsApp attendees group. So tune in, and if you need to see this session again, there will be it will be there. One last question जो मैं उमेर का आंसर करूंगी. Yes, उमेर, once you're shortlisted from the application, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो आप कुछ शॉर्टलिस्ट होंगे, उसमें से फिर कुछ लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगी.
The interview will be conducted by one of the companies जो Google की associate companies है, जो उनको lead hire करने में select करती है. ठीक है, वो interview आपका कोई भी कर सकता है. हम लोग का मोस्टली प्रदीप्ता ने किया था. एंड इंटरव्यू में बेसिकली वो 5 मिनट का भी हो सकता है, वो 1 घंटे का भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स कि आप अपने इंटरव्यू को किस तरह से ड्राइव करते हो. वो आपको वही 2 क्वेश्चंस पूछेंगे जो वो बाकी किसी को पूछेंगे. लेकिन अगर उन क्वेश्चंस में कोई जवाब है या इट देयर इज समथिंग दैट इज मेकिंग देम मोर क्यूरियस, तो वो आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे उसके बारे में. सो मेक श्योर कि जब आप आंसर कर रहे हो, कीप इट शॉर्ट, बट when you're saying something, it is something that is impactful. तो अगर impactful होगा, वो आपसे और questions पूछेंगे, and they're going to, then that is going to make a conversation. Interview नहीं होगा. ठीक है, I am not sure, I don't remember the exact company. I will link it down. That is fine. But some Google representative will take your interview. It is not a local interview. आपको call पे लिया जाएगा और वहाँ पे लेते हैं. Yeah, exactly. I think mine was an Indian Googler, someone like that. So, तो कोई भी ले लेगा. हम सबको जो इंडियन में लिया था इंटरव्यू, सबके लिए मेरे ख्याल से सेम ही था, बट he was from India and because it's based on the region, you know. Yeah, it based. अच्छा, कुछ लोगों का अभी भी मेरे ख्याल कुछ क्लियर नहीं है चीजें. मैं एक क्विक समरी दे दूं so ताकि लोगों को समझ आ जाए. अभी भी मतलब people are still asking that who also any undergraduate student from any university can apply for DSC in Pakistan. That's the answer is yes. If you're an undergrad student, especially in sophomores, ये preferred थोड़ा सा होता है, लेकिन it's not entirely preferred. But yeah, आप undergrad के student हो, ठीक है, किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की हो जो HEC recognized है, of course, ठीक है. फिर Google, how would Google know कि आप कहाँ से, किधर से background से हो. HEC recognized हो, तो yes, you can apply for DSC and you can become one DSC lead. Technical, non-technical background होना चाहिए नहीं, ठीक है. Doesn't matter आप technical और non-technical हो, आपका हो सकता है. I know few people in my list जो नॉट DSC और भी प्रोग्राम्स के हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, लिटरली अकाउंटिंग की स्टूडेंट थी वो और उसका हो गया, ठीक है. तो इट डजंट मैटर कि आप इंटायरली टेक्निकल हो, बट यस आई वुड से आपको गूगल टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए. फर्स्ट करो, आप एक कंपनी में जॉब देने के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू, ठीक है. वो कंपनी आपसे अपनी कंपनी के सवाल जरूर पूछेगी. कोई भी अच्छा HR है वो पूछेगी सवाल. अब DSC तो इंटायरली है भी कुछ इस तरह कि आप गूगल टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हो, ठीक है. तो अगर आपको गूगल टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो might as well make there's some routine के वो आपको शायद ना रखें. तो गूगल टेक्नोलॉजी का बिल्कुल पता होना चाहिए. आई वुडंट से कि बहुत अच्छे से हर डिटेल में, लेकिन ये गूगल की मेजर टेक्नोलॉजी का आपको जरूर पता होना चाहिए. आपका होमवर्क होना चाहिए. वो आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाई यू आर कमिंग टू DSC, सो ये चीज होती है. 1-2 पॉइंट्स और, सॉरी मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही थी. ओके, सो ये 3 चीजें हो गई. चौथी चीज ये है कि एप्लीकेशन आपने बहुत फोकस होकर भरनी है, आपने उसको रिव्यू करनी है. अगर आपके कुछ जानने वाला है, मतलब एटलीस्ट आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उस पर नहीं होनी चाहिए. तो आप किसी अपने बहन भाई को दिखाओ, उसको ये पिन पॉइंट करो कि यार एटलीस्ट इस एप्लीकेशन में कोई इस तरह की मिस्टेक्स तो नहीं है ना कि बंदा पढ़ के ही कहे कि यार इस बंदे को तो लिखना भी सही से नहीं आता अंग्रेजी में. तो दिस थिंग मैटर्स अ लॉट, आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि ये प्रोसीजर आपको फर्दर कंटिन्यू करता है आपके इंटरव्यू सेशन के लिए, ठीक है. तो यू शुड बी अ गुड राइटर, ठीक है. यू शुड नो हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है. ये बहुत मैटर करता है, चाहे आप DSC में हो या किसी भी दुनिया की और चीज में अप्लाई कर रहे हो. यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है. उसके बाद यस, हैव अ गुड लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल. ट्विटर भी अच्छा होना चाहिए. मेरा नहीं था, आई एम नॉट, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा. बट या जितने ज्यादा सोशल मीडिया पे आप जितने पॉजिटिव और लीडरशिप रोल्स को बेसिकली अपने फोकस कर रहे हो, उतना आपके लिए अच्छा है ये, क्योंकि वो चीज देखते हैं. ऐसे नहीं कि वो देखेंगे, वो देखते हैं, ठीक है. उसके बाद यस, GitHub नॉट एंटायरली वेरी, ये ऐसी चीज के मैंडेटरी है, बट इफ यू हैविंग गुड GitHub इट जस्ट इंक्रीज योर चांस टू गेट इनटू द प्रोग्राम. और उसके अलावा बस ये है कि एंड ऑफ द डे जो कुछ करो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह. ऑफ कोर्स आपकी किस्मत में लिखा है तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो यू शुड नो दैट यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मेक इट हैपन, ठीक है. सो थैंक यू सो मच, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड. कोई भी और सवाल है तो आई थिंक बहुत सारी चीजें मैंने जल्दी में क्लियर कर दी हैं. इन मतलब सारी मीटिंग्स का समरी थी. अगर कुछ और है अभी भी तो यार प्लीज आस्क. Yes, one last thing that I would like to add is कि there are a lot of questions asking कि कोर टीम में अगर हम नहीं है तो हम फिर भी अप्लाई कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते. Yes, you can apply. आप अगर कोई यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको बेस लाइन में तो स्टूडेंट होना है किसी यूनिवर्सिटी का. जरूरी नहीं है कि आप अप्लाई करो, नहीं मतलब आप कोर टीम में हो या नहीं हो. तो अप्लाई आप कर दो. ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी कंप्यूटर साइंस ही हो मेजर. आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस,
सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी मेरी यूनिवर्सिटी में वो वाले लोग भी करते हैं, एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन बस आपको थोड़ा एक नो हाउ है चीजों की, आपको लीड करना आ रही है टीम, एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट रियली मेकिंग अ डिफरेंस, गो फॉर इट। नहीं सोचो इतना कि ये मैं मेरा होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं सोचो, जस्ट गो फॉर इट एंड लीव इट टू अल्लाह। अच्छा, कोर टीम के रिगार्डिंग आई वुड से कि इट्स नॉट समथिंग कि आप कहेंगे यार आप कोर टीम में नहीं तो आप डीसी लीड नहीं बन सकते, बट ऑफ कोर्स अगर आपने पहले कोर टीम में हो तो वो प्रेफर करेंगे, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा जो है जो कोर टीम में पहले काम कर चुका है, ही नोज द डीसी इकोसिस्टम, तो उसका डीसी लीड बनने के चांस ज्यादा है। ठीक है, सो इवन आई वुड ऑनेस्टली से कि फर्स्ट करो आप, यू आर नॉट अ डीसी लीड, ठीक है, आप नहीं बनने, आपकी यूनिवर्सिटी कोई और बन गया, कॉन्टैक्ट हिम, टेल हिम कि मैं कोर टीम में आना चाहता हूँ। इफ यू इतना आप मोटिवेटेड हो, ये प्रोग्राम ऐसा है कि आपको इतने बेनिफिट्स दे रहा है, तो यू शुड हैव इनफ मोटिवेशन कि आपको डीसी लीड नहीं बना, बट आई वुड स्टिल वांट टू कंट्रीब्यूट, तो आप अपने डीसी लीड जो भी बने उसको अप्रोच करो वाया लिंक्डइन, पर्सनल कॉन्टैक्ट, जिस तरह से भी उसको कहो मैंने कोर टीम में आना है, और उस तरह से फिर आप मैनेज करेंगे कि वो किस तरह से एक यूनिवर्सिटी की हायरार्की बनाता है, गेट यू इनटू द प्रोग्राम। सो प्रीटी मच वही सीन होगा। इट्स नॉट कि आपने लीड ही बनना है तो हर चीज है, नो, आप कोर टीम में हो तो आपको बहुत ज्यादा मतलब एक एक्सपोजर फिर भी मिलता है। ठीक है, तो इट्स नॉट कि एंटायरली आपका गोल ही है कि डीसी लीड नहीं हुए तो यार इट्स वेरी सैड, इट्स नॉट सैड एट ऑल। ठीक है, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ योर डीसी लीड। ठीक है, आप उसके कॉन्टैक्ट टच में रहो तो वो भी बहुत बेनिफिट देता है। ठीक है, ऑल्सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में डीएससी नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर इट। आप अप्लाई कर दो, वंस आपकी सिलेक्शन हो जाती है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, देन यू कैन गो टू योर यूनिवर्सिटी, टॉक टू देम अबाउट द registration, and that is completely fine. तो आप regardless कोई भी मसला है, just apply कर दो, don't let anything come in your way. इसके अलावा I think I have answered all the questions. अच्छा, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, वो स्लैक कम्युनिटी का था। हाँ, वो डीएससी की है, स्लैक कम्युनिटी भी है, तो बस वो बता दिया कि है। अच्छा, एक और सवाल था कि डीएससी का टेन्योर कितना होता है, तो ये 1 ईयर का होता है, एंड हर 1 ईयर बाद जो एक नया लीड आता है। और दूसरा यहाँ पे अभी एक सवाल आया कि ऐसा हो सकता है कि 2 लीड हैं वो सिलेक्ट हो जाए? नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपके कैंपस से हमेशा एक ही लीड सिलेक्ट होगा, ये नहीं हो सकता कि आपके कैंपस से 2 लीड एट अ टाइम सिलेक्ट हो जाए। या और इलियास ने एक क्वेश्चन किया था कि कोर टीम के बारे में, और दूसरी बात ये कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं कोर टीम के लिए। तो जो आपने कोर टीम, जिस तरह अभी निम्रा ने भी बात की और कुमैल ने भी, कि आपने कोर टीम के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप अपनी लीड से बात करें। और इस टाइम पे आप कोर टीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस टाइम ये टेन्योर ख़त्म होने वाला है, और नेक्स्ट जो कोर टीम टेन्योर शुरू होगा ना, उसमें आप यानी कोर टीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू टॉक टू योर डीएससी लीड, कि जो आपके कैंपस का लीड है, और उससे आप उनसे इन कांटेक्ट हो जाएं, उनको अपनी अपनी टेक्नोलॉजी या नॉन टेक जिसमें भी आप बेहतर काम करते हैं आप उनको बताएं, और उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। और सेकेंडली आई थिंक किंजा इज आस्किंग अबाउट द सेम थिंग, तो आई होप किंजा आपको आंसर मिल गया इस बात का। और एक और अली ने क्वेश्चन किया कि इस प्रोग्राम के लिए CGPA की ज़रूरत है या टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स हैं। दैट इज़ नॉट द केस, दे विल नॉट आस्क योर CGPA एंड दे विल नॉट केयर, because they don't care how padhaku you are, rattebaz you are, you don't need to be a crammer for this. So you just need to be a community builder, you just need to have the leading abilities, so that is all you need to have. और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स की जहाँ तक बात है कि you should know something about technology, because that is the main thing. We are talking about Google technologies here. So अगर आपके पास टेक्नोलॉजी वाला नहीं भी है ना थोड़ा सा, लेकिन आप लीडिंग एबिलिटीज़ हैं और सोशल कम्युनिटी वाली एबिलिटीज़ हैं, तो यू कैन मोल्ड योरसेल्फ व्हेन यू कम इनटू द DSC chapters. Thank you, Ikra. Okay, so we are going to conclude the event now. If you have any more questions, आप लोग हमें personally reach out कर लो, or you can ask on the WhatsApp group and we will reply. ठीक है, thank you so much. Thank you for attending this. Allah Hafiz. Bye bye. Thank you so much for coming, and